So we have Bindu here, and Bindu is a nurse in UK NHS, and she has worked in Dubai as well. Dubai, India. She has worked in India, Dubai, and now she's working in UK as a nurse. So we want to ask you कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था तीनों कंट्रीज में, क्या आपको डिफरेंस लगा, क्या लाइफस्टाइल कहाँ पे अलग थी, सैलरीज और वर्क कल्चर कैसा है और सारी चीज़ें. व्हाट डू यू फाइंड डिफरेंस इन दीज थ्री कंट्रीज एज वर्किंग एज अ नर्स? Hi. I worked in India. I started worked in India. Then I moved to Dubai. I worked in Abu Dhabi for 10 years. Then after that, I moved to UK. That's my journey. So when I started in India, India is the best place for a nurse to develop. So starting as a career nurse, it's always better to be trained in India because educational system अच्छा है और जब भी हमें एक्सपोजर्स मिलती है हॉस्पिटल में वो बहुत अच्छा है. नंबर ऑफ पेशेंट्स उससे भी ज़्यादा जो कंडीशंस होती है ना, जो डिफरेंस कंडीशंस होती है, बीमारी अलग सा मिलती है. आई मीन इन दैट वे एज अ हेल्थ केयर वट एवर द प्रोफेशन इट इज़ वेरी गुड टू ट्रेन इन इंडिया. जैसे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रिक्ट होती है इंडिया में, एग्ज़ाम्स जो वगैरह होती है सब बहुत स्ट्रिक्ट है. तो as a nurse educated in India, or I trained from Kerala, so I will say like Kerala is the best one actually. So and I started working in India only, in Kerala only. I worked in Kerala only, so that also was a very good experience for me because during our educational time I got chance to work with the government sector as well. So it's like a private PHC, like a public health center. So we know the difference from the private to गवर्नमेंट सेक्टर. सो फैसिलिटीज़ कम है फिर भी ट्रीटमेंट तो अच्छा देती है वो लोग जितना हो सकती है. व्हेन वी कम टू द प्राइवेट सेक्टर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर डूइंग वेरी रियली वेल. कॉस्टली है ऑफ कोर्स, पर कंपेयर टू यूके इट इज़ वेरी वेरी चीप. कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इट्स वेरी वेरी चीप. और उधर मैंने काम किया 3 years की. देन आई मूव टू अबू धाबी वेयर आई वर्क. सो अबू धाबी 10 years एक्सपीरियंस आई हैविंग. Yes, of course. It's Health Authority Abu Dhabi. They're having a licensing exam. So when I moved there, I did it. Then You have to give it in Abu Dhabi itself? Or? no. Yeah. Now we have to give it in Abu Dhabi. Before there was in, we can do it in India as well. And is it tough one? Of course, now it is very lightly. But when I did that time, it was like 95-96% they expecting from us. It was like 10 years back, but now they are like lightning everywhere. So yeah, it was really difficult to get a license that time, difficult to get a job that time because they are not really open to everywhere. So but for me, luckily I got it very fast. So then I moved to Abu Dhabi. So Abu Dhabi, when I come to the Abu Dhabi, it was like multicultural aspect because we meeting with the people. When we are in India, it was like completely Malayalis. So it was very easy for us to handle with the language, we know the culture. But when we moved to Abu Dhabi, it was really, almost like cultural things we know. But when we come to Abu Dhabi, different culture people, Arabs, like cultural diversity was like a very surprising thing there. But the facility wise, Abu Dhabi was like first class actually. They're having all the advanced technology, everything. But still things होती हैं कि उधर की private sector और government sector is different. Private sector having a limited facilities, but government sector is fully functional. They are like प्राइवेट सेक्टर. नो, अबू धाबी का ये अच्छा है ना कि जब भी हम वीज़ा लेती है उसके साथ इंश्योरेंस इज अ मस्ट वन. सो जो भी है एमरजेंसी थिंग्स और रूटीन थिंग्स इंश्योरेंस विल कवर. सो उतनी भी भारी नहीं लगती है हम लोगों के लिए. जो मिनिमम पेमेंट होती है वो तो पे करना पड़ेगा, पर जो भी सर्जरी होती है, मेडिकेशन होती है, वो पूरा इंश्योरेंस पे कवर होती है. तो हेल्थ सेक्टर इज अ वेरी गुड इन दैट वे. उधर की नो सेम as Indian facility there. You go and pay. हाँ, we go and pay. We using the insurance there. We go and pay. अगर अपॉइंटमेंट्स ले सकती है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो जनरल डॉक्टर खूब मिलती है, किसी भी टाइम पे जाके मिल सकती है. ER इज लाइक ऑलवेज फंक्शनल. कैजुअलिटीज होती है पूरा. तो वो सब चीज़ में कंपेयर विद इंडिया इट्स द सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर. But of course the regulations is different from India. More need to be more very vigilant there because they are like monitoring everything. So it is really paperwork तो same होती है, documentation same होती है, पर
bit more vigilant there. How is the queue? How is the queue? Like NHS में आपने बोला. कुछ भी नहीं होता. Abu Dhabi में like it was like same as India. Like any time we can go. When it come to NHS, oh, this is really tough because GP surgery, we have to cover up with the GP surgery is a Tell me, when did you move to UK from? last, 2 years back, 2023, I joined here. 2 years back. So what did you have to give an exam? Yes, again, of course. What exam? For जो English language की एक टेस्ट होती है IELTS या OET बोलती है. OET is like occupational test. Then हमारा जो CBT एग्जाम है जो नर्सिंग की थियरी एग्जाम है और OSCE की एग्जाम है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है. तो ये जो एग्जाम है OET. हाँ, OET CBT ये मैंने अबू धाबी से किया था तो एग्जाम सब उधर से ही कर सकती है. जो OSCE है वो हम इधर जब ज्वाइन होगा जो हम हमारा हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है और जो भी प्राइवेटली आती है मतलब होता है ना कि स्पॉन्सर हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप पे या वाइफ की स्पॉन्सरशिप पे जैसे आती है ना वो लोगों को इधर से कर सकती है OSCE जो जॉब मिलने से पहले भी. पर हमारा जो होती है जो पूरा हॉस्पिटल कवर करती है जो OSCE की एग्जाम. पर दूसरा जो CBT IELTS है वो मस्ट है जो अप्लाई करने से पहले हमें फिनिश करना पड़ती है. और अबू धाबी से मैंने जो इंटरव्यू दिया था इधर ऑनलाइन किया था. कभी कभी होता है कि इंटरव्यूज आता है उधर पर मोस्टली ऑनलाइन होती है. तो स्पॉन्सरशिप वैसे ही लेना होती है हमें. जब वीज़ा लगती है तभी हम इधर आ सकती है किसी भी तरफ की. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वीज़ा आके इधर आके एग्ज़ाम कर सकती है. वैसे वाले चीज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है एक्चुअली. अगर कोई है स्पॉन्सर है तो ठीक है नहीं तो डिफ़िकल्ट है. जॉब ढूंढ के जॉब मिल के तभी तो आ सकता है इधर. तो वैसा ही आया था. मैंने एग्ज़ाम्स लिया था पहले और इधर मूव हो गया. जब शिफ्ट हो गया तो ऐसा था कि कम्प्लीटली चेंज क्योंकि दुबई इज़ लाइक अ वेरी हॉट कंट्री. like culturally different. Peoples are like for us actually we got mostly we got contact with the Indians or Pakistani people. So here when we come it's like entirely different community. It's really language is like even we know English but still their language is like bit difficult to understand, difficult to communicate. So that was a very challenging thing when we came in. It's just the first one faced. Then weather, of course, like completely cold weather. I joined in February, so it was like almost I came into that one. Yeah, from hot to cold. Yeah, so like a sudden draft from hot because I didn't take a break. Only 1 month break I took, so I just moved very suddenly. So it was like a drastic change in the weather. So that was challenging. And it was like very depressive when I came because उधर तो ऐसी होती है ना रात को 1 बजे 2 बजे तक मॉल सब खुला है. बाहर की लाइफ है जो नाइट लाइफ वाज लाइक वेरी नाइस इन अबू धाबी एंड दुबई वेयर व्हेन वी कम हियर 6 o'clock सब बंद. तो इट्स लाइक होता है ना कि जब डिप्रेसिव होती थी पहले जब फिर या ऑफ कोर्स इन 2 years इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ. और जब हॉस्पिटल की बात आती तो यही होता है ना कि अबू धाबी में जो होती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है लाइक GP के मतलब द वेटिंग वैसा कुछ नहीं होता है. इधर सेम शी सेड इट इज वेटिंग पीरियड इज लाइक वेरी बैड वन. इवन फॉर अस आल्सो वी हैव टू डू द प्रॉपर सेम वे यू गाइज आर डूइंग द सेम वे ओनली वी आल्सो. ऐसा भी नहीं है कि हम NHS में काम कर रहे हैं सभी से ऐसा कुछ नहीं होता है. सब सेम टू सेम जैसे नॉर्मल पीपल होती है और वो भी डिफ़िकल्ट होती है. और काम की तरफ से एक बात तो अच्छी होती है जब मैं इंडिया या दुबई कंपेयर करेगा तो वर्क लाइफ इज़ वेरी गुड हियर एक्चुअली. ऐसा होता है कि 12 आवर्स की शिफ्ट होती है हमारी. पर 12 आवर्स की शिफ्ट यूजुअली जो वीक पे लाइक 3 days या 4 days मैक्सिमम. तो ब्रेक टाइम बहुत मिलती है. मतलब जैसे हम अबू धाबी में होती है जो 6 days की काम होती थी मेरा 1 दिन का छुट्टी मिलती थी तो बहुत रश वाला जीवन लाइफ था. जब इधर आया तो ऑफ कोर्स वर्क बैलेंस इज़ वेरी गुड एक्चुअली. एंड सर्टन हॉस्पिटल्स ये होती है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रही है वो वर्क बैलेंस देती है एक्चुअली क्योंकि इधर kids are very important. That's why they are giving the work permit like alternate time and all. So in that way they are like life, if we say like family life is more secure here actually. Yeah.
बट ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ को ऑल्टरनेट शिफ्ट काम करना पड़ती है, पर डिफरेंटली फ्रॉम कंपेयर विद देयर इट इज। और यूजुअली जो लोग इधर चूज करती है इसलिए क्योंकि अबू धाबी में है ना, जो बहुत कॉस्टली होती है सब चीज़ें, इवन रेंट अगर आई मीन लाइक कंपैरेटिवली इट्स द सेम, बट स्टिल यू नो अर्निंग इज डिफरेंट एक्चुअली। अबू धाबी में जो होती है, जो भी हमारा सैलरी है वही पे चलती है, एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा टाइमिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप यूके पे आती है ना, जो एक्स्ट्रा काम कर सकती है, एक्स्ट्रा इनकम बना सकती है, हाँ टैक्स तो पे करना होती है, हर जो भी हम बनाएगा उसका टैक्स तो पे करना होती है, पर डेफिनेटली वी कैन मेक मोर मनी। इफ यू आर अ बैचलर, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। I will advise even you move it to Dubai or Saudi or whatever, it is better to move to UK because in 5-6 years you will earn more money। और इधर ना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है नर्सेस के लिए, क्योंकि जो बैंड लेवल्स अच्छा मतलब प्रमोशन वाला चीज़ें होती है। और अगर तुम हायर एजुकेशन करना चाहती है तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर यूएई का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हम मोस्ट ऑफ द कंट्री दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वन आउटसाइड फ्रॉम द यूएई। So in that case, when you come UK, is the best option to higher education for the nurses. So in that way, it is comparatively it is good actually UK। जब भी हम करियर स्टार्ट कर रही हो, अगर इधर आ रही हो, क्योंकि मैंने 10 साल अबू धाबी में काम किया था, where I start, I end up with the same place only। So if it is coming to here, still I am just in 2 years only, I am already in a band 6, not happen, but still I can apply for that one, I can just give interview, so in case I got it I can go with that one, or even I can go for a specialist nurse। so बहुत सारी opportunities होती है इधर actually, even education wise, career wise, everything। so अगर आप न्यूली ये था ना कि जो ग्रेजुएटेड है फ्रॉम इंडिया और यू आर प्लानिंग टू मूव टू अब्रॉड, I will prefer to say that go with UK because हाँ एग्जाम्स थोड़ा टफ है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट थोड़ा टफ है, और पर थोड़ा मेहनत करेगा तो सर लाइफ सेटल है, क्योंकि अबू धाबी इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क एक्चुअली वर्क, बट दिस इज द प्रॉब्लम दैट ग्रोथ नहीं होता है उधर कोई किसी का। और जब भी मूव होता है ना, हमारा खुद का घर ऐसे सपना होती है। अबू धाबी की ये चीज़ होती है कि हम अभी रियल एस्टेट लाइटली है, ले सकता है, फिर भी ऐसा भी गारंटी नहीं बोल सकती, पर इधर तो वो चीज़ होती है, घर तो ले सकता है। और हाँ एक चीज़ तो बताना ही पड़ेगा, अबू धाबी ऐसा होता है ना कि कहीं पे भी घर नहीं होता है, फ्लैट्स होती है, जहाँ पे भी जाओ अपार्टमेंट, घर नहीं होता है। घर होता है अब लाइक यू नो विलाज एंड ऑल, लाइक वेरी कॉस्टली काइंड ऑफ प्लेसेस, बट मोस्टली wherever we go it will be like flats और अपार्टमेंट्स। सो लाइफ तो उसी अपार्टमेंट के अंदर ही हो जाएगा। पर जब यूके में आती है ना, जो भी मूव करती है वो लोगों का एक प्रेफरेंस होती है कि घर लेने का, तो दैट इज हैपनिंग हियर। मेरे पास 2 सवाल है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि तीनों जगहों पे मेडिकल सिस्टम किसका बेटर लगा आपको? सैलरी तो आपने बताई थी शायद यूके की ज़्यादा बेटर है, पर मेडिकल सिस्टम इंडिया, यूके या यूएई किसका ज़्यादा बेटर है? और दूसरा क्वेश्चन आई थिंक ये बहुत लोगों को होगा कि केरला से इतने सारे नर्स कैसे आते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न कि नर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है केरला? डू यू नो द रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या इतना अच्छा सिस्टम है वहाँ पे? क्या है? लेट अस नो। हाँ, okay, as regarding the hospitals, I say like I worked in India, I worked in Abu Dhabi, I worked in UK system wise मतलब जजमेंटल नहीं है, फिर भी ये होता है ना कि बहुत सारे डिलेज होती है हर चीज़ पे। और जो एज ए नर्स, व्हाट आई से लाइक एज ए नर्स इंडिया में है ना, हमारा बहुत चैलेंजेस होती है। जो पेशेंट जो हमारे साथ होती है ना, जो नर्सिंग डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। जो भी हम कर रही है, जो बेड साइड होती है, जो भी हम डिसाइड कर रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स आर डिपेंड ऑन दैट वन बिकॉज दे आर नॉट विद द पेशेंट ऑलवेज। सो ये चीज़ होती है इंडिया में।
पर जब इधर आती है मत ये डिफरेंट ये होती है ना कि अगर इमरजेंसी सिस्टम पे काम करती है जो कैजुअलिटीज होती है या आईसीयू में होती है या दैट इज देयर, बट व्हेन वी कम टू द वार्ड मोस्ट ऑफ दम लाइक एल्डरली केयर हियर, क्योंकि जो हॉस्पिटल की जो मोस्ट लाइक सम परसेंटेज यू कैन से दैट इट इज लाइक एल्डरली होती है। जो एल्डरली केयर पे होती है ना कि जो पूरा लिमिटेड होती है, ज़्यादा कुछ करने का ही नहीं है, ऐसा वाला चीज़ होती है। तो हमें और communication is really difficult here actually. India it's like a straightforward thing, doctors are communicating very straightforward, but here even they having like multiple, they are not like directly doctors are, the consultants are dealing with us, they're having like different levels of doctors here, so in that way communication is like a bit barrier here actually. India में ऐसी नहीं होती कि सीधा consultant से बात ही होती है। Even in Abu Dhabi also the same thing, we just directly talking to the consultant doctor, there is no mediator, but here in that way communication is a bit different. Health system में अगर पूछेगा तो I will say cost wise India is better, क्योंकि कुछ भी सर्जरी कुछ भी हो जो हमारी cost wise is better, पर ये नहीं मैं नहीं कह सकती क्योंकि जो इंडिया में रह रही है वो लोगों के लिए still it is a difficult one, but if I'm compare with here it is very cheap, but Abu Dhabi is like a medium one because Abu Dhabi having an insurance system, so insurance पे cover होती है तो of course it is a cheap one, yeah, so for us it is not भारी नहीं पड़ती है हम पे। तो पर UK का it's everything free but delay is a problem। मुझे लगता है कि क्योंकि ये जीपी सर्जरी थ्रू ये वाला चीज़ होती है ना, इस पे बहुत डिले आती है एक्चुअली, जो पेशेंट्स भी कहती है हमसे सेम चीज़। इवन इन इमरजेंसी ऑल्सो इट इज़ नॉट लाइक ए वेरी मूविंग वन, दे वर लाइक वेटिंग 6 hours 7 hours 8 hours, even they have to stay in the corridor for the whole day. This all are like I never seen anywhere in the country. It is just happening in UK because I don't know the reason, I don't know what they are doing in that way, but this is a culture here, so nobody having any complaints on that one. But if it is happening in India वो तोड़ देगा हॉस्पिटल पे हार्डली so that is the huge difference what I felt in ट्रीटमेंट वाइज सेम तो होता है यार, इंडिया में या कहीं पे भी डॉक्टर्स करती है जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, पर इधर इसलिए लिमिटेड होती है क्योंकि जो एल्डरली पे आती है ना तब, और इधर की लाइक इंडिया में ऐसे होते हैं कि अगर कोई कैंसर पेशेंट हो कुछ भी हो तो मतलब एंड तक जो ट्रीटमेंट चलती रहती है। इधर एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि जो कुछ लोगों का ऐसा होती है कि दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो लिमिट होता है डॉक्टर्स की कि कुछ करने का। तो इन दैट केस ऑल्सो लाइक for us there is not much to do here actually as a ward nurse when I'm saying. When it comes to emergency or like ITU, yeah, might be observation wise and all, but when it comes to the ward, मैं हर टाइम यही बोलती रहती है कि यार ये कुछ करने का ही नहीं है ऐसे वाले चीज़। तो हाँ, स्टैंडर्डाइज है, जो भी प्रोटोकॉल से वही पे चलने का है, इधर उधर नहीं होने का, कुछ भी नहीं सोचने का, मतलब ऐसी वाली चीज़ें होती है जो प्रोफेशनली when somebody want to like very keen for that will be very disappointing for them. Okay. फैक्ट्री हाँ एक बार मतलब लाइक कहे तो हाँ है, क्योंकि बहुत सारी नर्सिंग कॉलेजेस है और कल ये ऐसा नहीं है कि सब लोग नर्सिंग पे जा रही है इसीलिए, पर होता है ना कि हमारे लिए एक सोच होती है कि जो जॉब इज़ वेरी लाइक सिक्योरली एक जॉब मिलना होती है, जो नर्सिंग इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि जब भी हम एक मतलब जो एजुकेशन फिनिश होती है सीधा हम जॉब पे जाती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फिर से वेट करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, सो सो दैट इज़ अ रीज़न। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सब लोग सर्विस करना चाहती है इसलिए नर्सिंग पे उतरती है, पर डेफिनेटली दिस इज़ अ रीज़न, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब होती है। पर फिर भी ऐसा होता है ना कि सब लोग सर्विस के लिए तो नहीं आती है, पर वो मेंटालिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ऑफ कोर्स। तो शायद केरला में जो नर्सिंग स्कूल्स ज़्यादा होती है इसी वजह से
पर ये मैंने पहले भी कहा था कि जो ट्रेनिंग जो नर्सिंग केरला पे मिलती है दैट इज़ एक्सेलेंट एक्चुअली। इतनी स्ट्रिक्ट होती है जो एग्ज़ाम्स की, एजुकेशंस की, जो क्लासेस की, सब से। और मोस्टली हर कॉलेज को एक हॉस्पिटल होता है, तो वी गेटिंग बेटर होता है ना कि थियरीज पे नहीं, प्रैक्टिकल भी बहुत सारा। क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग होती है ना, तीन महीने, जब भी स्टार्टिंग की 3 महीने से ही हम हॉस्पिटल की जॉब शुरू होती है, तो वी आर लाइक वेरी फेमिलियर विद द हॉस्पिटल, वी आर वेरी फेमिलियर विद द सिस्टम्स और पेशेंट्स, सो दैट्स वाई पीपल आर सेइंग लाइक दे आर वेरी एक्सेलेंट इन दैट वन। क्योंकि जो बेंगलुरु में या चेन्नई में वैसे होते हैं ना कि जो ये लोग का ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉलेजेस होती है, पर ये लोगों का हॉस्पिटल्स नहीं होता है, तो practical side is like very comparatively is not good, so that's why they're saying like Kerala nurses are very trained, very good, because we train from the beginning of the education systems actually, so that is why Kerala is best for the nurses. Factory तो नहीं है बिल्कुल। Most of 90% दुबई में जितने भी होंगे I think। दूसरी एक चीज़ होती है केरला, आई एम नॉट सेइंग दैट वे, बट स्टिल जो गर्ल्स होती है केरला की, हमारी जो कल्चरल सिस्टम है ना, जो घर की बहुत स्ट्रिक्ट होती है मोस्टली। ऐसा भी नहीं है कि 16 हो गया, 15 हो गया, जो मर्जी कर सकती है, वैसे वाला चीज़ नहीं होता है। हर टाइम पे कंट्रोल होती है फैमिली की, तो ये होता है ना। हाँ, फिर भी जो केरला में थोड़ा ज़्यादा होती है एक्चुअली, हाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो इसलिए ये होता है ना कि जब हम ड्यूटी पे जाती है ना, जो डिसिप्लिनरी थिंग्स होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली एज अ नर्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक काइंड ऑफ, सो दैट ऑल्सो इज़ अ रीज़न दैट केरला गर्ल्स आर लाइक और ये सिक्योर जॉब होता है यार हर चीज़ पे, तो इसी वजह से शायद, मतलब पता नहीं, सबका अपना अपना रीज़न होती है, पर मोस्टली दिस इज़ अ रीज़न। जॉब ईज़िली मिलती है, सिक्योर होती है, कहीं पे भी जाओ, किसी भी एज पे जाओ, जॉब तो होगा, तो दैट इज़ अ गुड रीज़न। पर अभी कम हो रही है केरला नर्सेस ही नहीं, नर्सेस ही कम हो रही है एक्चुअली एजुकेशन, क्योंकि जब मतलब ये 2-3 साल से केरला में बहुत सारा स्ट्राइक शुरू हुआ था, तब तो आ गई थी हमारी स्टोरीज बाहर। तब तक लगता है था लोगों की कि हाँ हमें तो बहुत पैसा मिलती है, ये तो ऐसी वाली चीज़ होती है, पर अभी सब लोगों को पता चलती है कि नर्सिंग कितनी डिफ़िकल्ट है और जॉब डिफ़िकल्ट है, सैलरी उतनी नहीं मिलती है, तो यूजुअली यार दे आर बैकिंग अप फ्रॉम एजुकेशन दैट वे। सो अभी कम हो रही है एक्चुअली, इवन कॉलेजेस देखें तो भी ना, जो स्टूडेंट्स की लेवल होती है ना वो भी कम हो रही है, पर स्टिल इट इज़ लाइक ए वेरी गुड प्रोफेशन एक्चुअली एवरीवेयर। Yeah, in that way it is like a factory। like a factory, but अभी प्रोडक्शन तो बहुत कम हो रही है एक्चुअली। Fair enough। Thank you so much Bindu for No sharing। worry।